Yes, Patel. So today we are again going to discuss the assignment which was given to you yesterday, right? So your eyes should be on your notebooks. When I ask you, जिसको भी मैं बोलूंगी, that student will give me response and others will keep on cross checking their answer, right? As we do in our regular class, तो आप वैसे ही you will keep on cross checking your answer, right? So जो आपको बेटे कल मैंने assignment भेजी थी, उसमें जो first question है, that is change the voice. Okay, so before that I just tell you in brief कि हमने voice जो किया active voice and passive voice, right? और जब हम किसी भी voice को active से passive बनाते हैं, certain changes that take place. वो changes, can anybody tell me about those changes? कौन-कौन सी changes होती हैं? Okay, before that my question, when we make a passive voice, which form of verb do we use in passive voice? Who will tell me? Physically raise your hands. Physically raise your hands. Physically raise your hands. Prathamveer. Which form of verb do we use in passive voice? Jaldi se. Jaldi se, jaldi se. Quickly, whenever any question is asked to you, immediately you are to unmute yourself and give answer. चलिए बेटा बताइए. Prathamveer. But if you don't know answer, please don't sit still. Just unmute yourself and tell ma'am I don't know. Ma'am, I don't know. Very nice. Okay. Then you need to pay attention. I hope कि आपने assignment solve की होगी. हाँ जी. Yes. Yes, Sachit. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, बेटे. मैम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. Yes. जब हम passive voice बनाते हैं, ये हमारा रूल है कि passive voice में always we are to use third form of verb. और third form of verb जो है वो बिना किसी helping verb के use नहीं होती, right? और क्या चेंजेस होती हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब का बता दिया. और क्या चेंजेस होती हैं? यस. और कुछ चेंजेस होती हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं. यस, इट इज जयविश क्या चेंजेस होती हैं? यस बेटे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटे, बोलिए. मैम सब्जेक्ट जो होते हैं मैम वो लास्ट में आ जाता है एंड जो प्रेडिकेट होता है वो फर्स्ट में आ जाता है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में तो वर्ब भी इंक्लूड होता है. नो बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ी है समझाने में. कोई बात नहीं, लिसन केयरफुली. ओके, गुड ट्राई. म्यूट योरसेल्फ. यस प्रीशा. मैम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैम वो दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं. Yes. Subject becomes object and object becomes subject. Javish, is it clear now? ठीक है, आप यही कहना चाहते थे बट आपने सब्जेक्ट और साथ में प्रेडिकेट यूज कर दिया. प्रेडिकेट में तो बेटा वर्ब इंक्लूड हो जाता है ना. तो चेंजेस क्या होती हैं? सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. एंड accordingly we use, according to the tense we use third form of verb, right? चलो, फर्स्ट सेंटेंस है My mother is preparing lunch. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टेंस कौन सा है. साथ में you will tell me the tense also. My mother is preparing lunch. You will tell me the tense also. Yes. Who will tell me? Yes, Jacqueline. Yes, bete. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, bete. Good morning. हाँ जी बेटे बोलिए. मैम दिस इज अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. Very nice. And how will you change it? Ma'am, lunch is being prepared by my mother. Very nice. अब देखो, lunch object है, वो बन जाएगा subject. ठीक है. Is preparing, that is continuous tense. और continuous tense में मैंने आपको voice में ये भी बताया था कि हम किसी को नाराज नहीं करते, सबको साथ लेके चलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ing है, तो how will we use it? Is and ing को साथ लेने के लिए being, being, and our rule is third form of verb, then prepare की third form of verb, right? And preposition by और जो subject है वो बन जाएगा object. So your answer is lunch is being prepared by my mother. Good. Put a tick if your answer is right, and if anything is wrong, make correction. Okay? हाँ जी, चिन्मय sit at one place बेटे. हाँ जी बेटा, next sentence है children love animals. Who will tell me now? Children love animals. Again the same hands. हाँ जी, जय बांगा.
जय बांगा, जल्दी से बोलिए बेटे। Animals are loved by children. वेरी गुड, एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन। ये टेंस कौन सा बेटा? मैम simple present tense. वेरी गुड। देखो अब एक ही टॉपिक है, हमारी दो दो चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज एनिमल्स आर लव्ड, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमारा क्या रूल है उसमें, इज एम आर के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो एनिमल्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन। ओके नेक्स्ट, थर्ड, शी केप्ट अस वेटिंग। शी केप्ट अस वेटिंग। अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, नेवर एज्यूम कि लास्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस दैट इज ऑब्जेक्ट। नो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, राइट। ये चीज ध्यान देनी है। हाँ जी, अब कौन आंसर बताएगा इसका? हु विल गिव आंसर? हाँ जी, गगन, गगन, गगन जल्दी से आंसर बताइए। गगन जल्दी बेटे, इतना टाइम नहीं है बच्चे। क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव आंसर। गगन बेटा, बच्चे आप व्हाई डोंट यू गिव आंसर? से यस और नो। मेरे को ये वाला आता नहीं था। ओके वेरी गुड। थॉट ऑल द सेंटेंसेस। ओके, म्यूट योरसेल्फ, नाउ लिसन केयरफुली। अगर कोई आंसर जब बताएगा तो लिसन केयरफुली। ओके, हु विल टेल आंसर? यस परीक्षा। यस यस Ma'am, third sentence, we were kept waiting by her. यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अस, उसका बन जाएगा सब्जेक्ट। तो वी वर केप्ट वेटिंग बाय हर। शी का शी एज सब्जेक्ट यूज होता है, जब प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट शी होता है तो हर हो जाता है। ओके नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस। गगन नोट कर लिया आंसर? गगन हैव यू नोटेड? ओके गुड। नेक्स्ट, they had already repaired the roads. They had already repaired the roads. Anmol, Anmol. They had been prepared the roads. ओके, आपने बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढा इसमें। सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, उनको इंटरचेंज किया आपने। आपने इंटरचेंज किया उनको। दिस इज हाउ यू हैव रिटन इट इन योर नोटबुक। यस बेटे, ऐसे लिखा आपने। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, कोई बात नहीं, गुड ट्राई, बट ध्यान से सुनना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बेटे। हाँ जी, हु विल टेल मी? इट इज, हु विल टेल मी? यस मान्यता, मान्यता बोलिए जल्दी से आंसर। मान्यता जल्दी से बोलिए बेटे। Ma'am, can I? बेटा आई डिडंट टेल यू टू गिव आंसर, आई एम आस्किंग। हाँ जी बेटे, यस ओके, मान्यता इज नॉट रेडी टू गिव आंसर। ओके सरगुन, विल यू गिव आंसर? सरगुन, सरगुन गिव आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट क्वेश्चन 4। सरगुन, ओके ओके बेटे। yes, who will give answer? It is yes, again the same hands. What about others? Why not you try bete? Why don't you all try? Why don't you all try? Hitesh, हितेश जल्दी से बताइए। Ma'am, the roads had been already repaired by them. ठीक है आंसर, बट इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आपने ये कर दी, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ऑलरेडी को आपने उसकी पोजीशन गलत कर दी बेटा। आपका आंसर अदरवाइज कन्वर्जन ठीक है। इट इज द रोड्स हैड ऑलरेडी बीन। अनमोल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन बन जाता है बेटा। मिस्टर बीन को ऐड करते हैं, आपको समझाया था परफेक्ट टेंसेस में। आई टोल्ड यू कि परफेक्ट टेंसेस आर द इजीएस्ट सेंटेंसेस फॉर कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, राइट। तो बेटा परफेक्ट टेंस में सिंपली वी आर टू ऐड बीन, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेक करेक्शन हितेश, यहाँ पे क्या आएगा? द रोड्स हैड ऑलरेडी बीन repaired by them. Have you all put a tick in front of your answer?
those who have solved. Okay, it is good, they are practicing. Obviously इन बच्चों की कोई गलती नहीं होगी, those who are regularly practicing. Very good. Vasvi, next sentence. I shall never forget those happy days. Vasvi, jaldi se. Beta, look at your notebook and then give me answer. Vasvi. Vasvi. Just see the beta, this is wrong. बच्चे अगर आपने नहीं किया तो मुझे बोल दो कि मैम I have not done it. Don't waste time, beta. We have limited time, बच्चे. Okay, बच्चे. Yes, it is. Yes, Sachit. Sachit, you give answers. And Vasvi, please note down the answer. Vasvi, stop talking. Good morning, ma'am. बेटे, yes, बेटे, good morning. बोलिए. Those happy days will never be forgotten by me. Yes. अब यहाँ पे very good, very good. अब यहाँ पे देखो, मैंने एक्टिव वॉइस में I shall लिखा था. पैसिव वॉइस में shall यूज नहीं होगा. Why? Because shall हम किसके साथ यूज करते हैं? I and we के साथ. अब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जब वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो भी हमने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है. राइट? सो राइट आंसर इज वेरी गुड, सचिन. राइट आंसर इज दोज हैप्पी डेज विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी. आई होप सभी चेक कर रहे हैं अपने आंसर्स. मनप्रीत, आर यू चेकिंग योर आंसर्स? मनप्रीत, आर यू चेकिंग योर आंसर्स? Yes, can you show me your notebook, beta? Show me your notebook. Okay, okay, beta. It is good. It is good. See, अगर आप बेटा अगर कोई झूठ भी बोल रहा है तो it is good for you. Practice करोगे तो ही आपको चीजें समझ आएंगी. Good, very good. चलो next. All of us were cheering the team. All of us were cheering the team. अब यहाँ पे subject क्या है? All of us. Verb क्या है? Were cheering. Object क्या है? The team. बस सब कुछ मैंने बता दिया. अब आपने सिर्फ चेंज करना है. Very good. अब सिर्फ चेंज करना है आपने. Who will do it? Who will do it? Okay, Ame. Ame will tell me. Ame will tell me answer. Ame, quickly give me answer. बेटे don't waste time बच्चे. Okay. Right, it is Neil. Neil, बताइए. Ma'am, the team was being cheered by us. By us. Subject By क्या है? us. Subject क्या है? Subject ये है. Subject में सिर्फ we दिया हुआ है. By all of us. By all of us. इसीलिए मैंने कल बोला था क्वेश्चन भी नोटबुक पे लिखना साथ में. So it is the team was being cheered by all of us. Okay, make correction बेटे. हाँ जी. Next Manjot. They have broken the window pane. हाँ जी. Present perfect tense. Very The good. window pane has been broken by them. Very good, very good. Present perfect tense, easiest. सिर्फ Mr. Bean को ऐड करना है. So it is the window pane has been broken by them. Very good, very good. Okay. Next is B part. I hope voice सबको clear हो गया. ठीक है. अब B part. जल्दी से. B part is change the tense according to the instructions given in the brackets. First is I go for a walk. Present continuous tense में change करना है इसको. I go for a walk. जय खत्री, जल्दी से आंसर बताइए. Others keep on thinking. जल्दी से. जय खत्री. Ma'am, I think Jay Khatri is not here. Please check it if he is not there. हाँ जी बेटा. Yes. विनायक जल्दी से बताओ बेटा. विनायक जल्दी से आंसर बताओ. Good morning, ma'am. Good morning बेटे. I go for a walk. Present continuous में. I am going for a walk. Very good. I am going for a walk. Very nice. Very nice. Second is I wrote a letter. Negative.
I wrote a letter. Negative. Diljot. दिलजोत बेटे जल्दी से अनम्यूट करिए बच्चे. मैम मैंने लिखा नहीं है मैम, मैं गया हुआ था. वेरी गुड वेरी गुड. पेपर आने वाले हैं, रिमाइंडर है ये बेटा. हाँ जी गगन बोलिए. गगन. I didn't write a letter. वेरी गुड. I didn't write a letter. I did not write a letter. अब did not वो सेकंड फॉर्म लगी, do की सेकंड फॉर्म did आ गया ना, तो उसके बाद मेन वो हमारा वो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. So I did not write a letter. Okay, very good. Third, Mr. Sen understood the problem. Past perfect. जल्दी से जल्दी से. Mr. Sen understood the problem. Past perfect. हाँ जी. Past perfect. Yes, who will give answer? Avni. Ma'am, Mr. Sen had understood the problem. Yes, past perfect में had के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. Had understood the problem. Okay. He finishes the work. Future perfect. He finishes the work. Future perfect. हाँ जी. Future perfect. Yes, कुशनाक. बोलिए कुशनाक जल्दी से. He will have finished the work. Very good. So it is he will have finished the work. Okay. हाँ जी हिमांशु. अगला he resigned this job. इसको चेंज करना है आपने फ्यूचर इंडेफिनिट. He resigned from the job. मैम यही है ना क्वेश्चन? हाँ जी यही है सर. सिंपल फ्यूचर में करना है आपने. फ्यूचर इंडेफिनिट में He will resign from the job. yes he will resign from this job. Okay ठीक है बेटा. 6 they will play cricket. Future continuous tense. They will play cricket. Future continuous tense. जल्दी से. हाँ जी. yes it is okay. लविश बताइए. चलो लवी जी गायब. ओके विनायक आप बताएंगे. They will play cricket. Future continuous tense. They will be playing cricket. They will be playing cricket. Okay ठीक है. 7 she sings a song. Past indefinite tense. She sings a song. Past indefinite tense. Okay अनमोल. हाँ जी she sings a song. Past indefinite tense. अनमोल बोल बेटा. अनमोल. वेरी गुड. मतलब काम नहीं किया. क्लियर इंडिकेशन. वेरी गुड बेटे. हाँ जी हितेश बेटा जल्दी से आंसर कीजिए बेटा. व्हाई डू यू स्विच ऑफ योर कैमरा. चलो जल्दी से आंसर बताओ. शी सिंग्स अ सॉन्ग. बेटा यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. हाँ जी बच्चे. ओके नील आप बताइए. मैम शी sang a song. She sang a song. Second form of verb use करनी है. She sang a song. Very good. They fought bravely. Negative. They fought bravely. Negative. हाँ जी मनप्रीत इसका आंसर बताओ जल्दी से. ये लिखा होगा नोटबुक पे. चलो. They fought bravely. हाँ जी. They do not fought bravely. They did not fought bravely. Did not के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे बेटे. जब did not did क्या है वो itself do की सेकंड फॉर्म है. did not तो यूज हो गया. They did not fight bravely. Make correction. They did not fight bravely. Okay. हाँ जी बेटे. अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है that is find the verb and tell the kind. 3 kinds of verb we have done. Transitive, intransitive and incomplete verb. Transitive क्या होता है. जिस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए. इंट्रांजिटिव को
इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, वो इटसेल्फ अपना मीनिंग पूरा कन्वे करता है। एंड इनकम्प्लीट वर्ब को उसको किसी वर्ड की जरूरत पड़ती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, बट दैट वर्ड इज नॉट ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये चीज आई थिंक अब आपको क्लियर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। इट इज फर्स्ट इज द चाइल्ड इज क्राइंग। ध्यान से, सबसे पहला स्टेप क्या है कि यू आर टू अंडरलाइन द वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। वर्ब क्या है यहाँ पे? नवल, नवल, हाँ जी, वर्ब क्या है सेंटेंस में? इज क्राइंग वर्ब है। तो इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? द चाइल्ड इज क्राइंग, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए? नो। देन कौन सा वर्ब है ये? Which verb is it? Intransitive verb. Very good. It is Intransitive intransitive. Yes. Is crying है, सिर्फ crying नहीं है verb यहाँ पे. Is crying and intransitive. Okay. Second, a banana tree grows very fast. हाँ जी, प्रीशा. प्रीशा, हाँ जी. मैम ग्रोज इंट्रांसिटिव वर्ब। Yes. Grows यहाँ पे verb है, ये intransitive verb है. इसको कि जो इसमें very fast जो है, that is not object. The banana tree grows, उगता है. Yes, it is conveying completely, right? Next, Harry broke the tip of his pen. Harry broke the tip of his pen. हाँ जी. Yes. Again, who will tell me? It is हाँ जी, चिन्मय. चिन्मय will tell me. जल्दी से बेटे. वर्ब क्या है यहाँ पे? broke यस, ब्रोक वर्ब है. अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है the pen द टिप बेटे, द टिप. ब्रोक जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के इमीडिएटली बाद होता है, ठीक है? तो यहाँ पे broke, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा? टिप ऑफ द पेन. सो इट इज कौन सा वर्ब है फिर ये? transitive verb Yes, ये ट्रांजिटिव वर्ब. वेरी गुड, पुट अ टिक. नेक्स्ट, देयर इज एनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस. वर्ब क्या है यहाँ पे? नील. क्या है वर्ब यहाँ पे? मैम इज तो इज कौन सा वर्ब होता है? मैम इनकम्प्लीट। यस, इनकम्प्लीट. अब देयर इज अगर मैं बोल दूं तो यहाँ तक कन्वे हो रहा, मीनिंग नहीं हो रहा, इसको कुछ और वर्ड्स चाहिए, बट जो और वर्ड्स हैं दोज आर नॉट द ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये कौन सा है? इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है? अच्छा, बी की फॉर्म बताओ. बी की फॉर्म कौन बताएगा मुझे? 3 फॉर्म्स ऑफ बी. बीई बहुत बार बताई है मैंने. 3 फॉर्म्स ऑफ बी. बीई बी. हाँ जी, हाँ जी, कौन बताएगा? गोविंद. गोविंद. मैम बी वॉज बीन। Yes, it is be, was, been. और be को जब हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज is, am, are. तो be की फॉर्म्स जो होती हैं वो इनकम्प्लीट वर्ब होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, we fly kite on holidays. We fly kite on holidays. हाँ जी, इट इज गुरजोत. गुरजोत, गुरजोत, जल्दी से बेटे. वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. क्विकली बच्चे. ओके जय, आप बताइए. जय बंगा. मैम फ्लाई। फ्लाई. ओके मैम वर्ब। हाँ, कौन सा वर्ब है ये? मैम ट्रांसिटिव। क्यों? मैम क्योंकि फ्लाई के बाद काइट, काइट है, काइट ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड. वी फ्लाई, क्या उड़ाते हैं? हम खुद थोड़ी उड़ते हैं. क्या उड़ाते हैं? काइट, राइट? सो इट इज ऑब्जेक्ट, इसलिए ये ट्रांजिटिव. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द सेंट वेंट इनटू द जंगल. सेंट साधु को बोलते हैं, पता नहीं सबको. द सेंट वेंट इनटू द जंगल. हाँ जी, हु विल टेल मी? जसम. जसम, जल्दी से. हाँ जी, जसम बोलिए. मैम यस, कैन यू रिपीट द सेंटेंस? Beta, have you written it in your notebook? Have you written the answers? Last sentence of exercise C. Last sentence of exercise C. नो मैम, बिकॉज Very good. Very good. Good, good, good. Shivansh. Shivansh, you tell me.
Shivansh, last sentence of exercise C. Tell me the answer. This proves you people have not done your work. Beta, this is practice for you. Jaivish, आप बताइए. मैम went transitive. Went transitive. Went के आगे what का आंसर मिल रहा है? The Ma'am, saint yes. went what? Ma'am, ये तो yes. where का आंसर मिल रहा है हमें. कहाँ गया into the jungle? Okay. Okay. Jacqueline. Ma'am, went intransitive verb. Went intransitive verb. Yes. बेटा मैंने आपको बताया था intransitive के बाद में ना adverb use होता है, preposition use होती है. ठीक है? So it is intransitive verb. Okay. So I hope this concept is also clear to you. Okay. So beta please practice nicely.